everyone, let us start a new chapter, that is trigonometry. Okay, in the first few lectures, first and second lectures, we will study basically we will revise what we have studied in the 10th class. Okay, and in the subsequent lecture we will extend our discussion of trigonometry for for the angles which are not the angles of a triangle. Okay, so let us understand what is the meaning of trigonometry. Trigonometry means the measurement of the parameters of a triangle. Okay, parameters of a triangle. So what are different parameters of a triangle? Let us consider this triangle ABC. So we have three sides. Okay, we have this AB side, then BC side, then AC side. These are the three sides, and then we have certain angles, that is angle ABC or angle BCA, and the other one is the angle CAB. Angle ABC, we also write this in compact form as angle B. Angle BCA, we can write it as angle C, and angle CAB, we can write it as angle A. So these are three angles. Okay, so basically we have 6 parameters in a triangle. 3 are the sides, 3 are the angles. Okay, so in order to measure anything, in order to measure any quantity, we must have certain units. Okay, units and dimensions. So everybody knows what is the unit of measurement of any sides, because sides are length. Okay, so we have the units for measuring the length, that are centimeters, meters. Okay, in different system we have different units. In English system we have foot, yard for the measurement of side. In international standard, that is SI unit, for the measurement of length of any side can be meters. Okay, so there must be also certain units of angle measurement. Okay, so what are these units of angle measurement? We will see. First let us consider what are positive and what are negative angles. Okay, so let us consider a point O and a ray OA, the other ray is OB. If I rotate this OA ray at an angle, say theta, okay, in anti-clockwise direction, then the ray OA and OB, let us say it coincide. Okay, so we will see that the angle between these two rays is equal to what? Theta, because we are rotating this OA in the anti-clockwise direction, so in this case theta angle is considered to be what? Positive. Okay, let us consider another situation. Let this be this ray OA, and this is the ray OB. Okay, and this is the angle theta. Okay, so if I rotate this ray, that is OA, in the clockwise sense, and eventually this OA and OB gets coincide. Okay, so in this case this angle you must know, one complete rotation is what? 360 angle. So the magnitude of this angle would be 360 minus theta, but because we are rotating this, we are measuring this angle in clockwise sense, so we will call this angle 360 minus theta as what? Negative angle. Okay, so clockwise angle measurement is considered to be negative, anti-clockwise angle measurement is considered to be positive. Okay, so this thing we must keep in our mind. Okay, so this is positive and negative angle. Now let us see what are certain system in which we are going to measure our angle. Okay, there are many system of units for the angle measurement. So the first one is sexagesimal system. Sexagesimal system is also the English system. English system is you must be familiar with the English system. In English system the length is
measured in foot. Okay, the mass is measured in pound. Okay, so in English system we will measure this our angle in the sexagesimal system or English system, that is also called degree. Okay, so let us see what is the definition of this degree. Okay, the sexagesimal system, it says a complete rotation describe 360 degree. Okay, very well, we also know that a complete rotation is called 360 degree. And it also says that a right angle is divided into 90 equal parts and each part is equal to what? 1 degree. So this is the definition of 1 degree. Basically 1 degree is defined as 1/90th part of a right angle. Okay, इतना सब कुछ आपको याद करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसा याद रखो कि ये जो इंग्लिश सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसमें हम लोग एंगल को डिग्री से मेजर करेंगे और बाकी ये सब कुछ बहुत ही बेसिक से कन्वर्जन्स हैं जो आपको पता ही होंगे। एक राइट एंगल में कितना डिग्री? 90 डिग्री, और फर्दर एक डिग्री में होता है 60 मिनट, फर्दर एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 60 मिनट। मिनट को ऐसा हम लोग डिनोट करेंगे 60 और एक डैश लगाएंगे उधर, है ना। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये कन्वर्जन आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब हम लोग फर्दर देखते हैं ये सेंटिसाइमल सिस्टम क्या होता है। सेंटिसाइमल सिस्टम बेसिकली हम लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। ये फ्रेंच सिस्टम है ना, फ्रांस के लोग जो है वो सेंटिसाइमल सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं और वो लोग ग्रेड्स का यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं कि एक राइट एंगल में जो है वो 100 ग्रेड होता है। ठीक है, बस इतना चाहो तो आप याद रख लो, अदरवाइज इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस सेंटिसाइमल सिस्टम। ओके, दो ही सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज वो डिग्री वाला जिसको हम लोग सेक्साजेसिमल भी बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा एसआई यूनिट होगा, ओके, जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन से मेजर किया जाता है। ओके, रेडियंस। सो रेडियन इज बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, एसआई यूनिट है एंगल को मेजर करने का। ठीक है, डिग्री वॉज इंग्लिश सिस्टम, रेडियन इज एसआई यूनिट। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर सिस्टम। अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है रेडियन की। सो रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। कोई भी सर्कल अगर हमने कंसिडर किया, कोई भी सर्कल, जैसे यहाँ आप एग्जांपल में देखो, कोई भी सर्कल अगर हमने लिया r यूनिट रेडियस का, ओके, ये हमारा जो रेडियस है वो r यूनिट है। अगर हम सेम r यूनिट का ये आर्क लेंथ कंसिडर करें, ठीक है, द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज व्हाट? r ओनली। ओके, वो रेडियस के ही इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे में जो ये आर्क हमारा सर्कल के सेंटर पे जो ये ये एंगल सबटेंड करेगा, वो हमारा 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन। ओके, सो वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। 1 रेडियन इज व्हाट? इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? द रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियन को डिनोट करने का जो मेथड रहता है, जैसे अगर मैंने थीटा रेडियन डिनोट करना है तो थीटा के ऊपर ऐसे एक सी बना देंगे, है ना। अगर थीटा ऐसे डिग्री में मुझे लिखना है तो यहाँ पे 0 बनाते हैं। ठीक है, लेकिन 0 अगर ना बना के हम लोग क्या बनाएं, सिर्फ सी लिखें। सो दिस रिप्रेजेंट्स थीटा रेडियंस। रेडियन को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड हो गया। ओके, डेफिनेशन हमने 1 रेडियन का समझ लिया। इसको हम लोग जनरलाइज करके एक यहाँ पे फार्मूला भी बना सकते हैं कि अगर कोई भी आर्क, अगर एल लेंथ का आर्क है तो वो
आर यूनिट रेडियस के सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल मेजर करे सबटेंड करेगा, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कोई आर लेंथ का, आर यूनिट रेडियस का एक सर्कल कंसिडर किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ये एक सपोज एल लेंथ का आर्क कंसिडर करता हूँ, तो ये एल लेंथ का आर्क अगर ये थीटा रेडियन एंगल बना रहा है, कहाँ पे, सर्कल के सेंटर पे, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, इन तीनों क्वांटिटी के बीच में कौन कौन सी, थीटा जो एंगल है, जो रेडियस है और जो आर्क का लेंथ है, वो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये रिलेशन आप लोग हमेशा जो है वो याद रखेंगे। ऑब्वियसली यहाँ जो ये थीटा है वो कौन से यूनिट में लिखा है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर से आप ये देख सकते हो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। इस वाले फार्मूले से भी जो है हम लोग रेडियन का 1 रेडियन का डेफिनेशन देख सकते हैं। आप खुद देखो यहाँ पे, अगर ये एल जो है आर्क ऑफ लेंथ, इसको हम लोग रेडियस के इक्वल कंसिडर कर लें, तो आर अपॉन आर, if I consider this length of arc to be equal to the radius of the circle, then ये जो थीटा है मेरा वो कितना आ जाएगा, r बाई आर, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यही हमारा 1 रेडियन का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाई लेंथ ऑफ एन आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, बट जितना रेडियस है उतना ही लेंथ का जो है आर्क भी होना चाहिए। अगर हमने 100 सेंटीमीटर रेडियस का जो है एक सर्कल कंसिडर किया, तो उसके अंदर जो 100 सेंटीमीटर आर्क लेंथ होगा वो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया हमारा रेडियन का। और ये वाला जो फार्मूला है ये हम लोग याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी जो है डायरेक्ट हम लोग इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये हमारे 3 सिस्टम हो गए, ओके। 3 में से आपको 2 ही याद रखना है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। पहला जो हमारा इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम फॉर एंगल मेजरमेंट, ठीक है, इसको हम लोग सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं। तो वो क्या है, उसके अंदर हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। और दूसरा जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है, बस यही 2 आपको याद रखना है, सर्कुलर सिस्टम, ओके। इसके अंदर हम लोग अपने एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं, ठीक है। रेडियन जो है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये एसआई यूनिट है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कन्वर्जन फार्मूला होगा। 1 डिग्री से अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में, ओके। तो उसके लिए जो है आप बस ये याद रखोगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मैं पाई रेडियन ऐसे पूरा रेडियन लिखूं या सिर्फ मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, इसका भी मतलब रेडियन ही होता है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अगर ये वाली बात हमको याद है तो फिर हम लोग ये कन्वर्जन फार्मूला बना सकते हैं कि कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, देन मल्टीप्लाई दैट डिग्री बाई पाई बाई 180, ओके। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो, देन मल्टीप्लाई दैट रेडियन बाई 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है वो रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मुझे 90 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में लिखना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, पाई बाई 180 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स पाई बाई 2, ठीक है। जैसे मुझे 45 को जो है वो रेडियन में लिखना है, ठीक। तो 45 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो विल हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस 45 बाई पाई अपॉन 180, ओके। तो ये आपको पता है 45 इंटू 4 जो है वो 180 होता है, तो आंसर इज पाई बाई 4, ठीक। जैसे बोला जाए, अगर
इसका रिवर्स लेते हैं, है ना। अगर बोला जाए 120 डिग्री को, 120 डिग्री को, डिग्री तो हो ही गया ना, ऐसा लिखते हैं 2π/3, 2π/3 रेडियन को अगर मुझे डिग्री में लिखना है, ठीक है। तो रेडियन को कभी भी डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली मल्टीप्लाई दैट बाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। 2/3 इंटू 180 डिग्री विल बी 120 डिग्री, ठीक है। बोला जाए 2 रेडियन, 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो रेडियन को कभी भी डिग्री में कन्वर्ट करना हो विल मल्टीप्लाई द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई, ओके। सो या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर अगर हम अप्रॉक्सीमेट इसका डिग्री में वैल्यू देखना चाहें तो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 22/7 है ना। तो पाई की ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम 22/7 पुट करें, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए तुम्हें कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है, बिकॉज पाई इज़ इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल होता है। और 22/7 ये तो दिख ही रहा है, सम इंटीजर अपॉन सम नॉन जीरो इंटीजर, ये रैशनल लिखा हुआ है, कोई भी रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पाई हैज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इक्वल टू 22/7, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ओके। सो अगर हम ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे पाई का वैल्यू अगर पुट करें तो 360 अपॉन 22/7, ऊपर 7 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली ये मिलेगा मुझे कोई 114.5 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो ये हमने देखा कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कैसे होगा और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है। अब कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। और पहला एग्जांपल है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल की बात हुई है, सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। हैविंग रेडियस 5 यूनिट, रेडियस इसका जो है वो 5 यूनिट है। और बेसिकली हमसे क्या पूछा, ये लेंथ पूछा गया है, ऐसा लेंथ जो कि सेंटर पे, हमारे सर्कल के सेंटर पे 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसा लेंथ जो हमारे सर्कल के सेंटर पे 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलो हमने इसको 15 डिग्री बोल दिया, तो हमें ये वाले एल लेंथ की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो हमने फार्मूला जो पढ़ा था थीटा इक्वल टू वॉट, L/R, ओके। बट ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है, ये सबको याद होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो एंगल है वो 15 डिग्री में दे रखा है, इसको मुझे रेडियन में जब भी लिखना होगा सो आई विल मल्टीप्लाई दैट बाई π/180। अब ये थीटा हो गया इक्वल टू L, ये तो फाइंड आउट करना है, अपॉन रेडियस जो हमारा 5 यूनिट, ओके। 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि जो L का वैल्यू आएगा यहाँ से वो भी हमारा सेंटीमीटर के फॉर्म में आ जाएगा। कितना होगा 15 इंटू 5 इंटू पाई एंड डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। तो अगर हम पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 15 इंटू 5 इंटू 22/7 इंटू 180, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी let me check, this comes out to be some 1.309 centimeter, okay, or we can say approximately 1.31 centimeter, okay। so ठीक है, ये आपने इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देख लिया, थीटा इक्वल टू L/R। कोई भी दो क्वांटिटी आपको दी जाएगी इसमें और तीसरी आपसे पूछ लेंगे, जैसे इस केस में थीटा बता दिया था, रेडियस बता दिया था और L का वैल्यू आपसे पूछ लिया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यू हैव टू कन्वर्ट दिस 1.4 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ओके। रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन, सो 1.4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यू विल मल्टीप्लाई रेडियन बाई 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो
अब इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7, सो 7 ये ऊपर चला जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास में 1.4 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, okay, so this comes out to be some 80.18 approximately डिग्री, ठीक है। डिग्री में कन्वर्जन जब भी बोले तो ज़्यादा बेहतर रहता है डिग्री मिनट और सेकंड में लिखना, ठीक है। तो ये अगर ठीक है, ये भी गलत नहीं है, ये तो सिर्फ डिग्री हो गया। अब इसका मतलब ये है, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि 80 डिग्री तो पूरा है, बट ये उसमें 0.18 डिग्री और है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या रहता है, 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम लोग चाहें तो ये 0.18 डिग्री को अपने मिनट और सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 100 डिग्री तो ऐसे ही रहा। अब देखो 0.18 डिग्री को मिनट में अगर कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, सो 0.18 डिग्री विल बी व्हाट, 0.18 degree will be 60 into 0.18 minutes, okay। so ये आ जाएगा हमारे पास में this 0.18 multiplied by 60 comes out to be 10.8 minutes, ठीक है। फर्दर हम चाहें तो अब 10.8 मिनट का मतलब क्या हुआ, 10.8 मिनट का मतलब हुआ कि 10 मिनट तो पूरा पूरा है और ये 0.8 मिनट और है इसमें, और हमें पता है कि 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड होता है। तो 0.8 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 0.8 इंटू 60 सेकंड, ओके। सो दिस इज 48 सेकंड, ओके। सो दिस कैन बी रिटन एज 48 सेकंड, 10 मिनट एंड 80 डिग्री, ओके। सो हमारा जो फाइनल आंसर है, अब ये इसको प्लस प्लस ना करके सीधा ऐसे भी लिख दिया जाता है, 80 डिग्री 10 मिनट एंड 48 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कन्वर्जन इज वेरी इजी, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाई 180 अपॉन पाई, देन पुट द approximate value of pi, that is 22/7, and convert subsequently, okay। So let us take another example, reverse other way around, that is 45 degree 20 minute and 10 second, we have to convert it into radians, okay। So अगर हम पहले क्या कर लें, इसको पहले पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लें। एक बार इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग सिंपली उसमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो और फाइनल आंसर विल बी दैट, ओके। तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें ये देखना है कि 45 डिग्री तो है ही हमारे पास, ये जो 20 मिनट लिखा हुआ है हमें पता है 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री, ओके। सो 1 मिनट विल बी व्हाट, 1 अपॉन 60 डिग्री, सो 20 मिनट विल बी 20 अपॉन 60 डिग्री, दैट इज 1/3 डिग्री, ये हो गया, ठीक, ओके। अब जो है हमारा सेकेंड वाला, ठीक, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें फिर से डिग्री में, 10 सेकेंड्स, ओके। वी नो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, एंड फर्दर आई कैन से this 1 minute is what, 1 upon 60 degree, so finally 60 second is equal to 1 upon 60 degree, and further we can write 1 second is equal to 1 upon this 60 into 60, that is 3600 degree, ठीक। सो एक सेकेंड में होता है 1 upon 3600 degree, so what will be 10 second, simply multiply it by 10, so 10 upon
this 0 get cancelled, so we get 1 upon 360 degree. So this is 1 upon 360 degree. Okay, so finally we have in the left hand side 45 plus 1 by 3 and plus 1 upon 360 degree. So in order to convert this into radians, we will multiply it by pi by 180. Okay, and then by putting the approximate value of this pi, that is 22 by 7, we can get what is the value in radian. Okay, so this you can simplify using calculator or otherwise. Okay, so this is the funda for converting the degree into radians and the radians into degree. Okay, let's take this another example. It says, assuming the distance of earth from the moon to be 38,400 kilometers. Okay, and the angle subtended by it by moon, angle subtended by moon at the eye of a person on the earth. Okay, let's say this is earth, here is a person. Okay, and here we have moon. Okay, so the diameter of the moon, let's consider this diameter to be AB. So this moon is subtending some angle at the eye of the person. Okay, this moon is subtending some angle at the eye of a person. The person obviously is standing somewhere on the earth. Okay, so this angle is given, this angle is what, 30 minutes. 30 minutes is nothing but 30 upon 60 degree, that is 1 by 2 degree, or I can say 0.5 degree. Okay, fine. This diameter, okay, this diameter we have to find, and the length of this moon from the earth, distance of moon from the earth is given to be 38,400 kilometers. Okay, 38,400 kilometers. So how can we do this question? By assuming, because this length, this distance is very greater. Okay, so if this distance is very greater, consider this as a circle. Okay, if I take this very small portion, if I take this very small portion of the arc length and assume this circle to be very large. Okay, consider this, and if I take this very small portion of arc length of the circle, okay, you can very easily see that this arc length, we can approximate this arc length as a straight line. We can approximate this arc length as a straight line. Okay, so this thing we are going to use in this question. Okay, so we will just consider because this, if I consider this person to be a center, and if I draw a circle like this, by considering this person to be the center, okay, the radius of this circle would be the distance between moon and earth, that is this 38,400 kilometer. This is such a large distance that we can consider this circle to be infinitely large. Okay, if this circle is infinitely large, then this length AB, what is the diameter of moon, I can consider this to be the arc length of this infinitely large circle having its radius as equal to 38,400 kilometers. Okay, so now we can apply this formula, that is theta equal to what, L by R. In this case, this theta is what, 1 by 2 degree, but 1 by 2 degree we have to write this theta in what, radians. So we will multiply this by pi upon 180. So this is our theta. The length of R, this length is nothing but our diameter, so I am writing it as AB, and this radius
this radius is the basically the distance of moon from the earth. Okay, so this is given as 38,000 what 400 kilometers. So from here we can calculate this AB length as pi into 38,400 kilometer divided by what 360. Okay, you can calculate it by yourself. Okay, so this approximation, by using this approximation we have applied this formula, because this formula can only be applied in case of a circle and its arc. Okay, in this case there was no circle, so we assumed an infinitely large circle having its center on the point where the person is standing, and the radius as the distance between the earth and the moon. This is basically the value of various trigonometric ratio for some standard angle: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay, so I hope you must remember the values of various trigonometric ratio for some standard angles. Okay, if not, then you must remember or learn all this value. Okay, if these three values, that is sine, cos and tan, okay, if you learn these three, then there is no need to learn the cosec secant cot, because you know cosec theta is nothing but the reciprocal of sine theta, sec theta is nothing but the reciprocal of cos theta, and cot theta is nothing but the reciprocal of tan theta. Okay, okay, fine. Why these angles, cosec 0, this tan 90, cot 0 and sec 90 are not defined, we will study later. Okay, let us discuss about the angles which are greater than 360 degree. Okay, so if you remember, we can draw 4 quadrants of angle, that is first, second, third and fourth, and you all remember that in the first quadrant, that is this angle between 0 and pi by 2, in the first quadrant all the 6 trigonometric ratios are positive. In the second quadrant, that is from pi by 2 to pi, that is from 90 degree to 180 degree, only sine and its reciprocal, that is cosec, are positive. And in the third quadrant, that is 180 degree to 270 degree, only tan and its reciprocal are positive. And in the fourth quadrant, 270 degree to 360 degree, you can say what cos and its reciprocal sec are positive. Okay, you remember all these things very well. Okay, so we are going to discuss some different thing here. So let me draw it again, this first quadrant, second, third and fourth quadrant. Okay, so this horizontal axis, if I name it to be OA, okay, this OA is the line for 0 degree. It is also, you can say, 2 pi, okay, because one complete rotation is equal to 360, or in terms of pi you will say 2 pi. Okay, 2 complete rotation will be 2 pi plus 2 pi, that is 4 pi. 3 complete rotation will be 6 pi. Okay, so this 0 radian is also equal to 0 degree. Okay, so it's better we write in radian. Okay, so 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, all these angles corresponding to this axis, that is OA. If I name this axis as OB, okay,
you can measure this angle OB correspond to our angle pi, that is 180 degree. If you measure this angle in this clockwise direction, you know that clockwise angle measurement is termed to be negative, so we can also write minus pi. Okay, where will be 3 pi? This complete rotation becomes 2 pi, and after 2 pi you have to go pi, so this will also be 3 pi. Similarly, you can observe this 5 pi minus 3 pi. Okay, all these angles will be corresponding to the this axis OB. Okay, now let me consider this point as C and this axis as OC. Okay, so what are the angles corresponding to OC? The angles corresponding to OC are, let us see this angle as, this is pi by 2. If after complete rotation we move further pi by 2, then we will again reach this axis OC. So I can say 2 pi plus pi by 2 is also the angle corresponding to this ray or axis OC. Okay, so 2 pi plus pi by 2 will be what? This will be 5 pi by 2. Okay, so this was also pi by 2, 5 pi by 2. Okay, similarly we can consider this to be 2 complete rotation, that is 4 pi plus pi by 2, that is 9 pi by 2, 13 pi by 2. Okay, you can easily visualize. If we measure this angle in clockwise direction, okay, so in clockwise direction this angle is 3 pi by 2, but we will write this in negative because this clockwise angle is considered to be negative, so this is minus 3 pi by 2. Okay, so all these angles are basically the angles corresponding to OC. Let us consider this axis to be OD. Okay, OD, and let's check what are the angles corresponding to this axis OD. If I measure this angle in clockwise direction, this is pi by 2, that is 90 degree, but in clockwise direction we will take this to be what? Negative, minus pi by 2. If we take this angle measurement as positive, it means we are going to measure this in anti-clockwise direction, then it becomes 3 pi by 2. Okay, after one complete rotation 2 pi plus 3 pi by 2, so 2 pi plus 3 pi by 2 will be what? This will be this 7 pi by 2. So all these angles are corresponding to this axis OD. Okay, so how do we remember all this? This horizontal axis, that is OA and OB, you can easily see all the even multiples of pi. All the even multiples of pi, it means 0, 2 pi, 4 pi, or minus 2 pi, minus 4 pi. Okay, and all the odd multiples of pi. All the even multiples of pi are here, and odd multiples of pi are here. Okay, so if we combine this horizontal axis, so we can say all the multiples of pi corresponding to the horizontal axis, that is this OA and OB. Okay, and this vertical axis, these are basically odd multiples of, see, this is pi by 2, again pi by 2, pi by 2, pi by 2, pi by 2, pi by 2 into 1, pi by 2 into 5, pi by 2 into 9. Okay, here only pi by 2 into 7, pi by 2 into 3. So you can easily visualize these are basically the odd multiples of pi by 2. So let me write it in a better form. Okay,
So this was even multiple of pi. This was odd multiple of pi. Okay, and this vertical axis was basically odd multiple of pi by 2. Okay, both. So vertical axis, you remember this only, this vertical axis correspond to the angles which are odd multiple of pi by 2, and this horizontal axis is corresponding to the angle, the multiples of pi. In the positive direction we have even multiples of pi, and in the negative direction or in the left direction we have all the odd multiples of pi. Okay, these are basically the reference angles. Okay, the angles which lie on the axis, whether it is horizontal axis or vertical axis. Okay, so these are reference angles. Okay, now let us see how do we write the value for any trigonometric ratio. Trigonometric ratio is nothing but sine, cos, tan. Okay, for allied angles are those angles which are written in this form, alpha plus theta. Okay, where this alpha is reference angle, and this theta is some acute angle. Any angle that can be written in this form is called as allied angle. We have just studied what are the reference angles. Reference angles are those angles which correspond to this axis. Okay, so how to write various trigonometric ratios for these allied angles, alpha plus theta, where alpha can be any multiple of pi, whether odd multiple or even multiple, or any odd multiple of pi by 2. Okay, so there are two rules, there are two steps, or I can say there are two rules to write this trigonometric ratio for any allied angle. That is, you have to check what is the value of this alpha. If alpha is multiple of any multiple of pi, in other word I can say any angle which is corresponding to the horizontal axis. Okay, if alpha is multiple of pi, then this our trigonometric ratio remains same. Okay, let me create some space. This alpha was reference angle. Okay, so what I am saying that if alpha, this alpha, the reference angle what we are using. Okay, reference angle mean let us consider we have to find the value of sine of 330 degree. Okay, so I will write this 330 degree in the form of this 300 minus, or 300 plus 30 degree. Okay, so this becomes 300 is not any reference angle. We have to look for that angle which correspond to any one of the axis. Okay, so I can write this as 270 plus 60 degree. Okay, so this 270 degree is corresponding to this vertical axis. Okay, so this is our reference angle. Okay, so if this reference angle what we are using is any multiple of pi, our trigonometric ratio is not going to change. But if reference angle is any odd multiple of pi by 2, means in degree I can say 90 degree. If any odd multiple of this 90 degree, then this trigonometric ratio changes,
and how does it change? The sine will change into cos. Okay, sine will change into cos and cos will change into sine. Tan will change into cot and cot will change into tan, and further sec will change into cosec and cosec will change into sec. Okay, so these things you must remember. The reference angle what you are using, if it is multiple of pi, then your trigonometric ratio is not going to change, and if it is an odd multiple of pi by 2 or 90 degree, then your trigonometric ratio is going to change. Okay, and the sine, okay, not this sine, sine means positive or negative. Okay, sine of this t alpha plus minus theta, okay, let me write plus minus theta, will depend on the quadrant in which this angle alpha plus minus theta lies. Okay, we will see it by the help of examples. That will be more helpful for you. Okay, yes. So let us write this first kind of formula. The first formula says sine, cos, tan, cot. Okay, all these value you have to write for this 90 degree minus theta. Okay, the very first thing you must observe that this reference angle, that is alpha, it is the odd multiple of pi by 2. Okay, so our trigonometric ratio is going to change. Sine will be converted into cos, cos will be converted into sine, tan will be converted into cot, cot will be converted into tan. Okay, sec will be converted into cosec and cosec will be converted into sec. Okay, so this thing, and तो यहाँ पे हम लोग ये कौन सा साइन यूज करने जा रहे हैं, प्लस का या माइनस का, ये डिपेंड करेगा कि ये 90 माइनस थीटा एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब 90 माइनस थीटा हम देखेंगे, 90 यहाँ पे आता है, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा जो होगा हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई बोलेगा कि सर अगर ऐसा लिखा हो 90 माइनस 110, अगर ऐसे लिखा हो तो इस केस में तो 90 माइनस 110 जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हम कौन सा यूज करेंगे, तो आपको हमेशा ये थीटा का वैल्यू जो मर्जी हो, ठीक है ना, 90 से कम हो 90 से ज़्यादा जो मर्जी हो, है ना, आपको बस इसको एक्यूट मान के चलना है। मतलब 90 माइनस थीटा जो है, 90 यहाँ है, थीटा का वैल्यू इनफैक्ट जो मर्जी हो, आपको मानना क्या है, एक्यूट ही मानना है। तो ऐसा जब एक्यूट मानोगे तो 90 में से थीटा जब कम करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, एंगल जो भी होगा तुम्हारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हर जगह पे हमारा जो है वो पॉजिटिव का साइन आ गया। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम ये सेकंड हमारा क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। ये 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। इसका मतलब ये सब चेंज तो होगा ही। कॉस जो है हमारा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। टेन जो हमारा कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा। सेक जो है हमारा वो कॉसेक बन जाएगा, और कॉसेक है हमारा सेक बन जाएगा। फिर हम प्लस का या माइनस का साइन, यहाँ पे कौन सा साइन यूज करने वाले हैं ये देखने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि 90 प्लस थीटा एंगल कहाँ पे होता है। 90 यहाँ है और थीटा हम हमेशा एक्यूट मान के चलेंगे, सो 90 प्लस थीटा एंगल विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें देखना है कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है हमारा कोसेक। तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे
और बाकी हर जगह पे हमारा नेगेटिव साइन लग गया। ठीक है, ऐसे ही देखो साइन 180 माइनस, ये 180 मतलब हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं इसका टी ऑफ पाई माइनस थीटा। टी माने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखा, ये जो 180 है ये तो पाई का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, मतलब साइन का जो है वो साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन कॉट सेक कॉसेक। फिर इधर में प्लस या माइनस का साइन, ये हम कैसे चेक करेंगे, ये देखते हुए कि 180 माइनस थीटा एंगल जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 180 यहाँ होता है, माइनस थीटा किया, माइनस थीटा मतलब कम किया एंगल को थोड़ा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से दो ही चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, साइन और कॉसेक। तो हमेशा तुम्हें ये लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान रखना है, ये भी देखना है ना, इसको पॉजिटिव बनाना है और बाकी सबको क्या, नेगेटिव। ठीक, ऐसे ही हम 180 प्लस थीटा का भी देख सकते हैं, क्योंकि 180 है हमारा रेफरेंस एंगल, तो इसकी वजह से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी प्लस और माइनस का साइन एडजस्ट करने के लिए हमें सिर्फ ये जानना है कि 180 प्लस थीटा हमारा कहाँ पे होगा। तो 180 प्लस थीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट सिर्फ क्या रहते हैं, टेन और कॉट हमारे सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं। तो टेन और कॉट यहाँ लिखा है, बस ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जो है वो नेगेटिव। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने पहले ये दो चीज़ें बता दी बस यही तुमको याद रखना है कि कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, कहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाकी साइन वाइन तो तुम प्लस का माइनस का देख ही लोगे। ठीक, नेक्स्ट है ये साइन ऑफ मतलब टी ऑफ 2 पाई माइनस थीटा करके है ना, टी ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई है रेफरेंस एंगल, अगेन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो सब साइन कॉस टेन ऐसे ही लिखते गए हम। ठीक है, फिर प्लस का या माइनस का साइन दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन वेयर दिस एंगल 2 पाई माइनस थीटा इज लाइंग। ओके, सो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहाँ पे होता है, ये 2 पाई माइनस थीटा कम किया थोड़ा, 2 पाई माइनस थीटा आ गए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और इनको छोड़ के बाकी सब लोग नेगेटिव। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और देख लो, ये जो 2 पाई माइनस थीटा लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि जब एक रोटेशन हमारा पूरा हो ही गया तो वो 2 पाई लिखे ना लिखे एक ही बात है, 2 पाई माइनस थीटा विल, ये थीटा है तो 2 पाई माइनस थीटा को हम लोग सिंपली थीटा एंगल भी बोल सकते हैं माइनस में। ठीक है ना, इस वाले एंगल को मैं यहाँ से देखो 2 पाई माइनस थीटा बोलूँ या सिंपली माइनस थीटा बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग कि ये माइनस नेगेटिव एंगल के फॉर्मूले बन गए हमारे पास, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा आप खुद ही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टी ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, और प्लस वाले क्या फॉर्मूले होंगे, तो पाई बाई 2 के ये ऑड मल्टीपल्स दिख रहे हैं, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, तो हमें पता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होने वाला है। चेंज कैसा होता है, साइन कॉस इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, टेन और कॉट इंटरचेंज हो जाता है, सेक और कॉसेक इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद प्लस या माइनस का साइन वो हम देखेंगे
कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा ये 3 पाई माइनस थीटा आएगा। तो ये 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे माइनस थीटा किया मतलब कुछ थीटा एंगल इसमें से कम कर दिया, ठीक है। तो हम आगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है क्या क्या पॉजिटिव रहता है, tan और उसका रेसिप्रोकल cot, ठीक। तो tan और रेसिप्रोकल उसका जो है cot, उसको हम पॉजिटिव रखेंगे और बाकी सबको नेगेटिव। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव है tan और cot, इसके अलावा जो साइन है cos है वो सब हमारे लिए, ये सब जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको देख लेना 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये 3 पाई बाई 2 हो गया और प्लस थीटा थोड़ा आगे आगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी, कॉस और सेक। इसके अलावा जो है बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो इसको मैं लिखूँगा माइनस, और साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज होगा ही, तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया, यहाँ साइन थीटा हो गया, ठीक है। इधर में माइनस कॉट थीटा हो गया, यहाँ पे माइनस टेन थीटा हो गया, और ये पॉजिटिव में आएगा कॉसेक थीटा, और ये नेगेटिव हो जाएगा हमारा सेक थीटा, ठीक है ना। तो हमेशा आपको साइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान में रख के देखना है, ठीक है। इसको देखे नहीं कि यहाँ पे कॉस है और सेक है तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं। यहाँ क्या है वो देखो, यहाँ कॉसेक लिखा है, यहाँ साइन लिखा है, तो ये तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो इसलिए लेफ्ट वाले को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूले लिख लिए, अब इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो ये साइन 300 डिग्री का वैल्यू लिखना हो, तो बस ये जो एंगल है 300 डिग्री, इसको सम रेफरेंस एंगल प्लस माइनस कुछ एक एंगल करके लिखना होगा, ठीक है ना। अब इसका कोई यूनिक मेथड नहीं है, अब कोई इसको साइन 270 माइनस 30 भी लिख सकता है, कोई चाहे तो इसको साइन ऑफ 360 माइनस 60 भी लिख सकता है, सॉरी 270 प्लस 30, ठीक है ना। दोनों केस में आंसर जो है वो सेम ही आएगा। देखो अगर हम इसको देखें 270 प्लस 30, तो 270 होने की वजह से साइन बनेगा कॉस में, सो कॉस 30, और 300 डिग्री हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, तो फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, तो ये माइनस कॉस 30 हो गया। अब कॉस 30 आपको याद होना चाहिए, कॉस 30 अगर आपको याद है सो ये √3/2 होता है, सो आंसर इज माइनस √3/2। अब अगर किसी ने इसको ऐसे लिखा तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 360 लिखा है हमने, इसका मतलब कि साइन का साइन ही रहने वाला है, सो साइन 60, ठीक है। अगेन फिर से ये वाला जो एंगल है मेरा 300 डिग्री, ये फोर्थ में है, तो फोर्थ में तो साइन जो है मेरा वो नेगेटिव रहता है, तो माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 का वैल्यू फिर से वही आ गया माइनस √3/2। तो लिख के चाहे आप जिस मर्जी तरीके से, आंसर सेम आएगा, ठीक है। tan 420, सो वी कैन राइट इट एज 360 प्लस 60, 360 होने की वजह से tan का tan ही रहेगा, और 360 प्लस 60 हमारा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, सो आंसर इज √3, ठीक है। यहाँ देखते हैं माइनस, ये तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अंदर वाला एंगल जो है माइनस 120, इसको हम लिख लेते हैं माइनस 120, पहले तो हम वो नेगेटिव एंगल वाला है फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। क्या पता है कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। कैसे, कॉट माइनस थीटा का मतलब इसको ऐसे समझो, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, ये 2 पाई माइनस थीटा है यहाँ पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉट का तो कॉट ही रहने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है कॉट, तो इसलिए माइनस कॉट थीटा। तो वो नेगेटिव एंगल वाला फार्मूला लगा के माइनस जो बाहर निकलेगा वो पहले से बाहर में एक और माइनस है, तो प्लस कॉस कॉट 121 गया। फिर इसको हम 90 प्लस 30 लिख लें या 180 माइनस 60 लिख लें, चाहे जिस मर्जी तरीके से, ठीक है। अब कॉट 90 अगर लिखा तो मुझे पता है 90 पे तो कॉट जो है मेरा चेंज होगा किसमें, tan में, सो tan 30,
फिर यहाँ प्लस या माइनस का साइन, ठीक है, वो देखना है कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, 122nd क्वाड्रेंट, और सेकंड में हमारा कॉर्ड जो है वो कैसा रहता है, नेगेटिव। सो दिस इज -1/√3, ठीक है। ओके, बाकी ये सब आप खुद देख लेना। तो इस वाले लेक्चर में हमने अभी एंगल मेजरमेंट देखा, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं, एंगल मेजरमेंट के क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या उनका इंटर कन्वर्जन है, और एलाइड एंगल्स के फार्मूले हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हमारा कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी उनको डिस्कस करेंगे, उनको रिविजिट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।